हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया था नाथुला पास बाबा मंदिर और छांगू लेक का व्लॉग। यहाँ से होगा अगला व्लॉग कंटिन्यू। Hello everyone, good morning. I hope you all are doing well. This is day 4 for us in Gangtok and day 3 for our sightseeing today. And today we are planning to go to Namchi, and from there we'll be going to Ramangla, and there is beautiful Buddhist temple over there. Seen a beautiful picture of that Ramangla Buddhist temple. And from there we are planning to go to Timiti Garden and Char Dham, and I hope it would be a beautiful journey. And I will share everything whatever happens on the way with you, and I hope you will enjoy this vlog. If you enjoyed, please hit the like button, do comment below and subscribe to my channel. And today is very cloudy, as you can see from my window. I cannot see anything from the window. The mountain view is vanished, as you can see. I hope this would be a safe and beautiful journey, and talk to you in next video. I hope you will enjoy this vlog. Please keep on watching. After having our breakfast at 9:30 a.m. we started for Namchi. Namchi is 78 kilometers away from Gangtok and it is very much popular for its Buddhist monastery and scenic beauty. नामची जाने के लिए आपके पास 3 रास्ता होता है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको सिंगटम वाला रोड लेने के लिए, अदरवाइज़ बाकी जो रोड्स है उसका कंडीशंस अच्छा नहीं है और आपको पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जो हमारे साथ हुआ था, 4 से 5 घंटा हमको लग गया था रामांगला पहुँचने में, और रास्ते में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। पूरे दिन का जो शेड्यूल था ना वो ज़्यादा बिगड़ गया था। आपको अगर एडवेंचरस ट्रिप अच्छा लगता है तो हमारा वाला रास्ता आप चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ गो विद द सिंगटम रोड। बट हमारे वाले रास्ते में जो व्यू था ना वो बहुत ऑसम था। खाई वाली रोड थी तो रोड ट्रिप बहुत एडवेंचरस था। तो पूरे दिन में आप ये भी एंजॉय कर सकते हो, वो भी एंजॉय कर सकते हो। चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू सी। 6 hours later. आज हम स्टार्टिंग में जाने वाले हैं रावांगला बुद्धा पार्क, एंड रावांगला बुद्धा पार्क इज सिचुएटेड इन साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ हैविंग 130 फीट हाई स्टैचू ऑफ बुद्धा एज द सेंटर पीस, एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। बट जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है, आपको ठंडी बहुत लगेगी। यहाँ पे पूरा चारों तरफ ना एकदम फॉगी फॉगी सा आपको लगेगा। कभी कभी बुद्धा जो स्टैचू है ना वो आपको दिखेगा भी नहीं, ऐसा सिचुएशन था। चलो अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं इसका व्यू। The ideal time to visit this lovely park is from April to June, and for the snow lovers it is from September to November, because you would get an awesome view of the snow-covered Himalayan mountains as well as the colorful flowers dotting the park, which shall leave you speechless, and marvelous feeling would be there. You would get an amazing feeling when you would visit this place, and the entry fee per person is 50 rupees and the timings are from 9 a.m. to 6 p.m. When we visited this place, the place was with too much of fog, and sometimes तो ऐसा हो रहा था कि जो बुद्धा मूर्ति है वो भी हमको नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑफ द फॉग। बट जो बुद्धा मूर्ति है वो बहुत ही खूबसूरत है। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ मच ब्यूटीफुल इट वॉज, बिकॉज कैमरा कैन नॉट कैप्चर दोज ब्यूटी विच यू कैन सी थ्रू योर ओन आईज। After enjoying the beautiful Buddha park in Ramangla, we have left for चार धाम। एक्चुअली हमको टिमिटी गार्डन भी जाना था, बट टिमिटी गार्डन का प्लान हमको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि चार धाम और टिमिटी गार्डन दोनों डिफरेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस पे है, और क्योंकि हमने सुबह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था रास्ते में ही, तो हमको टिमिटी गार्डन ड्रॉप करना पड़ा प्लान, और हम लोग निकल गए चार धाम के लिए।
Here you can find the temple replica of all four Dham temples, that is Dwarka, Badrinath, Puri and Rameshwaram, and these temples look almost the same as the real ones but size में थोड़ा छोटा होता है, but surely worth having a look at. The most incredible is the statue of Lord Shiva, which looks very beautiful as the clouds move through this amazing statue, and the temple is located within few kilometers from the main Namchi market area. बट जो मंदिर है ना वो हाइट पे है, तो यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता रहता है, तो बिफोर विजिटिंग दिस प्लेस उस चीज़ को ध्यान में रखना. यहाँ पे इतना फॉग है, मतलब हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है. वहाँ पे टेम्पल, वो शिव जी का टेम्पल है, मूर्ति है, वो दिख भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा फॉग है. ये है आई थिंक पूरी टेम्पल के जैसा, थोड़ा सा उस हिसाब से बनाया हुआ, सब लग तो रहा है वैसा ही. ये हमारा आखिरी धाम जो हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से. आफ्टर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ चारधाम हम लोग निकल गए हमारे होटल के लिए, क्योंकि टिमिटी गार्डन का प्लान हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया. रास्ते में हमको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम रुक गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट छोटा सा था बट उसका एम्बियंस अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छा लगा मुझे. चलो अभी खाना एंजॉय करते हैं. यहाँ पे आ गया है मेरा गर्मा गर्म सूप. जी वेटिंग फॉर फूड. चलो आई विल एंजॉय माई सूप नाउ. आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड. इफ यू हैव एंजॉयड प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट below and subscribe to my channel, and next episode will be uploaded very soon, so stay tuned to it us and thank you for watching.